हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो के संग, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमाएं। हर एक के दिल में बड़ी इच्छा होती है और स्टॉक मार्केट के बारे में आप काफ़ी कुछ सुनते हैं, काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, कई बार टीवी पर, कई बार दोस्तों से, कई बार दूसरी मैगजीन्स में, और आप भी सोचते हैं कि इससे हम पैसा कैसे कमाएं। देखिए, इफ़ you understand that how to make money, it becomes really easy. But if you are dependent on someone, you always remain dependent on the next person. Let's see how we can do it. Before we do so, a few words about myself, that who am I? I'm Vimal, and I have worked with Pfizer India for about 17-18 years. Basically, I started my career from Pfizer, was a ranker there, and there developed some taste for financial markets. Post Pfizer, I developed myself as a supply chain professional, and I am a staunch supply chain professional. I have been a speaker on the SCM conferences at a couple of places where I have explained, discussed the SCM, supply chain management. I am an investor too. I have a lot of interest in technical study also, but remember, I am no more a trader. That's not my cup of tea. I have lost reasonably on that, and I have learned after spending that money. So in other words, you can say that I have paid fee to learn. मैंने पैसे दे के सीखा है कि डे ट्रेडिंग नहीं करने का, इन्वेस्टिंग करने का. Now, there is another school of thought which says day trading is very good thing. Yes, कुछ लोगों के लिए होगी, लेकिन मैंने अभी तक जो भी देखा है, जो मेरा अपना तजुर्बा है, उसमें मुझे यही महसूस होता है कि डे ट्रेडिंग से आप बेहतर वेल्थ नहीं बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो सीरीज़ मैं कर रहा हूँ बिकॉज आई इंटेंड टू रिटर्न बैक टू सोसाइटी. सोसाइटी ने मुझे काफ़ी दिया है. मैं एक ऑर्डनरी नॉर्मल आदमी होता था विच हैज़ ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड नाउ थ्रू वेरियस मीन्स आई एम रिटर्निंग बैक टू द सोसाइटी, एंड आई कंटिन्यू टू बी अ स्टूडेंट फॉर फाइनेंसेस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग फंडामेंटल्स, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग द टेक्निकल स्टडीज़. Now see, look at this chart. This is very interesting chart. It's of long-term period, and if you see the chart, you will find that from this place, from May till December, this stock is growing and growing, which is very interesting thing. So who doesn't want to invest in such a stock? The other thing is RSI levels, that how they are moving, how they are behaving. There are a couple of things which you can notice, that there are green and red charts, and trust me, each of this line speak. This is just a case which I have taken just to show you that yes, you can make money in the stock. Simply if you think that at any point of time, if you feel like here, suppose you had purchased and here you sold, you made some money. If you purchased here at this level 520 and you sold here, you sold say about 620, you earn 100 rupee per share. So it's not like that if you have invested in a right stock at right time with right pricing, 100% you will gain money over a period of time. Let's see further. See, here the level remains same, and this is a place where I had entered basis certain reasons which were backed fundamentally too. There were people. Now another interesting portion in the chart you will notice is the volume portion. So this is the volume portion, this portion is the volume. So here the volume of the chart, that how much trading has happened, कितने शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है, क्या उनका वॉल्यूम था, इज मेंशन, एंड यू विल फाइंड दे आर ऑल्सो नॉट स्टैटिक.
From here they have grown, again small quantity, then again grown, growing, and here maybe more or less same quantity on a daily basis. It's a chart on the daily basis from TradingView. You can use any company, you can use any chart. TradingView as such is free also. Okay. Now I'll be discussing that how to make money. You will learn this with me. कैसे पैसे बनाएं, कैसे पैसे कमाएं, किन स्टॉक्स में लगाएं, which are the right stocks, which should be the right sector. One need to look at the sector also, not only the stock but in sector also, because the first thing would be the sector, second thing would be the stock. स्क्रीन कैसे कर सकते हैं बिना पैसा खर्चा करे? You must have seen that so many people are there who are giving you tips. There are a couple of business channels which keep on speaking, and if you notice or you listen to these TV channels, you will notice that they are just speaking without much substance. I don't say that they don't speak substance, but without much substance, because their prime job is to speak and ensure that people listen to them. They are least bothered about your earning or your losses, and they mostly talk about intraday business. They talk too much on the stop loss basis. The moment you complain, first you will not be able to reach them to complain that yes, you had recommended and I bought it and I have lost, what to do. Second, if at all you reach them, they'll say we had suggested you a stop loss, did you follow that? And you will not be having any answer because you do not know much. So avoid them and do it yourself. I'll suggest you how you can screen, and that too for free without spending even a single penny. आपको स्क्रीनिंग एग्जाम्पल हम देंगे, आपको बताएंगे कैसे स्क्रीन आप कर सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं स्क्रीनिंग के. And the fine list to have in portfolio. See, portfolio is something. What is portfolio? It's like a bouquet. एक गुलदस्ते की तरह की चीज़ है जिसमें कुछ सुंदर सुंदर फूल, 2, 4, 5, 6 तरह के फूल मिला के आपने गुलदस्ता बनाया. The same thing is your portfolio, where a couple of stocks, they are into that for a certain period of time, and from there they grow, and you expect that they will give you fruits over a period of time, and earnings will be much higher than that of bank interest. Fine. Other factors are also there in the portfolio construction which need to be considered, and maybe that topic in itself is about 20-25 minute topic. So maybe in one of the other video series which I'll make, I'll take that topic. Okay. Now let's look at how further we move. So the very first basic question is, how do we make money? We make money from stock market. That's very clear. How we make money? We buy at lower level, we sell at higher level. We buy at lower level and we sell at higher level. We buy at lower level and we sell at higher level. Simple. That's very easy thing. Apparently it looks easy, but it is not. If you look here, you will find these volume candles are saying something. If you look here, volume candles are saying something else. Both trend and pattern is not common. There is something else, this is something else. Similarly here, there is some other pattern, there is something else is happening. Look at it. This is a chart of some stock from the stock market only. Look at another chart. Now in this chart, look at this portion, focus here, and look at this portion. Something else is there. So volume as well the candles, they are talking to you. The only thing is you need to learn to talk to them, that what exactly they are saying, और उसको कैसे आप ट्रांसलेट करो अपनी लैंग्वेज में. और अगर आपने ट्रांसलेट कर लिया, ज़िंदगी आसान हो गई, आपको समझ में आ गया. अगर आपको यहाँ पर समझ में आता कि हाँ जी यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे ख़रीद लेते और यहाँ तक आप चले जाते. और अगर आपको ये समझ में आ जाता कि यहाँ के आसपास ये गिरेगा और रीज़नेबल गिरेगा, तो आप यहाँ पे बेच देते. अब अगर आपको फिर पता है यहाँ से आगे जाएगा, यू कैन बाई फ्रॉम हियर.
So this is how that cycle goes on, and people keep on earning on the limited set of stock. Because any stock chart, if you look at, you will find it's never static. कभी भी एक लाइन में सीधा नहीं चलता, ये हमेशा कर्व के संग होगा. And these are a very specific chart from a specific stock. But if you look at other stocks also, you will find multiple curves. ऊपर नीचे, कभी भी सीधी लाइन में आप नहीं देखोगे. Fine. Look at the same chart. I have taken the same chart on a scale where you can see the price band also. Now look at it, how this is growing and growing. Here volumes are very high, but still the cost wise it is at 1000 level, and in very small period, it's on a daily basis, so it's less than 10 months, it has almost doubled from 1000 to 1800. That's the kind of growth you can expect if you have invested in a right stock at right time. Now another important thing is, if it is a right stock and right time, obviously you can make this money, but not necessarily in the same period of 6 months or 8 months. It could be 1 year, it could be 1.5 years, it could be 2 years, but for sure this would be better and higher than that of your bank rate of interest, which is peanut and almost equivalent to that of inflation nowadays. So this is what I was referring to. Look at this position and look at volume candles. What the volume bar charts are saying. Volume bar is saying something and this candle is saying something. So the only thing is one need to learn. Look at this candle, this is also saying something. Look at this candle, this also is saying something. So I'm sure you will agree with me that candle talks to you. It does speak with you. Look at this portion, these candles are telling you something. Look at these volumes. What do they tell you? What is happening? Remember, Mr. Market is most knowledgeable person. मार्केट से ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं है और मार्केट हर चीज़ को डिस्काउंट करके चलता है. कोई इवेंट होने से पहले मार्केट को पता होता है कि हाँ जी ये इवेंट होनी है और वो अकॉर्डिंगली रिएक्शन करता है. वो रिएक्शन कहाँ दिखता है? वॉल्यूम्स में पहले, और साथ ही साथ वॉल्यूम्स के साथ ही प्राइस इसका लिंक होता है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइस वॉल्यूम एक्शन. लेट्स लुक एट विच स्टॉक्स एंड फ्रॉम विच सेक्टर. इसको उल्टा कर लेते हैं. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वी मस्ट से विच सेक्टर्स एंड विच स्टॉक्स. सो फर्स्ट सेक्टर, तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई द सेक्टर. सेक्टर कैसे हम देखें? सो हमको इसके लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा. कुछ हाईटेक काम नहीं करने का है. जैसे आप नॉर्मल न्यूज़ पढ़ते हो, आप नॉर्मल अखबार पढ़ते हो और आपने पढ़ा अभी कुछ दिन पहले चाइना का प्रॉब्लम आया. सो आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना से तमाम इंपोर्ट पे बैन लगाया, तमाम इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तमाम इंपोर्ट पे इंपोर्ट लाइसेंस दे दिए कि भाई जिसके पास लाइसेंस होगा वो उतना ही वही इंपोर्ट कर पाएगा और लाइसेंस स्पेसिफिक क्वांटिटी के संग होगा. राइट नाउ व्हाट हैपेंस, इससे फ़र्क क्या पड़ा? सो किन किन सेक्टर में पड़ा? फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक सेक्टर है जिसमें बहुत फ़र्क पड़ा, बिकॉज एपीआई एक ऐसी चीज़ है फार्मास्यूटिकल का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को शॉर्ट फॉर्म में एपीआई कहते हैं, जिससे दवाएं बनती हैं. से फॉर एग्जांपल आप एक क्रोसिन खाते हैं या कालपोल खाते हैं जिसमें एक्टिव कंपोनेंट पैरासीटामोल है. सो ये एपीआई आती है, बल्क में आती है या बल्क में कहीं बनती है और उसके बाद दवा की कंपनी में जाती है जो क्रोसिन या कालपोल बनाते हैं और वो उस एपीआई से, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से कालपोल या क्रोसिन बनाते हैं. नाउ ये एपीआई पहले हिंदुस्तान में भी बनती थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाइना, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, उनकी कॉस्ट काफ़ी कम थी. सो पीपल shifted to China and they started buying bulk from them and Indian manufacturing घटती चली गई, काफ़ी घट गई, जिसका नतीजा था कि हमारी अपनी मार्केट में ने उनको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया और अल्टीमेटली उनका ग्रोथ भी कम रहा और वो बढ़े नहीं. बट जैसे ही गवर्नमेंट ने बैन लगाया, जैसे ही गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, जैसे ही गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए दैट यू कैन इम्पोर्ट दिस क्वांटिटी ओनली स्पेशली फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, सो वो सारी कंपनियां जो ये बनाती थी
उनके प्राइसेस में तेज़ी से इजाफा होने लगा, बिकॉज मार्केट को पता चल गया कि अब ये कंपनियां अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगी सो उनका अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बिकॉज अगर वो 12% मार्जिन पे काम कर रही हैं और पहले 100 करोड़ कर रही हैं और प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद 200 करोड़ करेंगी तो 200 करोड़ का 12% ज़्यादा पैसा आएगा। अगर उनका फिक्स खर्चा मान लीजिए 10 करोड़ का होता है 100 करोड़ बेचने में, तो 200 करोड़ बेचने में 20 करोड़ खर्चा नहीं होगा। Am I right? Am I sounding logical? So this is how you can decide the sector. The second thing comes, think yourself. आप सब्जी लेने जाते हो तो आप कैसे सब्जी खरीदते हो? आप अगर मूली लेने जाते हो या प्याज लेने जाते हो तो क्या उसको हाथ लगा के देखते हो? आप देखते हो। क्या आप दो जगह भाव पता करते हो? हाँ जी, पता करते हो। तो अब आप बोलोगे कि भैया शेयर में मैं हाथ कैसे लगाऊं? भाव तो पता नहीं कर सकता। यस, यू आर राइट, भाव उसका स्टैंडर्ड है, बट हाथ आप लगा के देख सकते हो। आप उसके बारे में नॉलेज पता कर सकते हो, कहाँ पे मिल रहा है, वो कंपनी क्या कर रही है, वो क्या बना रही है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या था, उसका फ्यूचर रिकॉर्ड क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। आप अगर एक घर खरीदते हो तो आप बेसिक्स ढूंढते हो कि भाई कौन से मोहल्ले में घर है, से गलियों के अंदर घर है और आपके पास एक अच्छी खूबसूरत कार है। वुड यू लाइक अ हाउस? एक बड़ा सा महल है बट वो एक स्लम बस्ती के अंदर है, क्या आप उसे लेना पसंद करोगे? यू विल थिंक ट्वाइस। सो सिमिलरली इन द स्टॉक्स यू आर बाइंग अ बिजनेस, आप उस बिजनेस में एक हिस्सा ले रहे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसके बारे में नॉलेज करें, नॉलेज इकट्ठा करें, उसके बारे में पढ़ें और फिर ये तय करें कि ओके ये स्टॉक है। तो सेक्टर आपने तय कर लिया, स्टॉक आपने तय कर लिया। अब जी स्क्रीनिंग के बारे में हम बात करते हैं। हमने आपसे कहा था आई टीच यू दैट हाउ यू कैन स्क्रीन फॉर फ्री। फ्री स्क्रीन करने के लिए काफ़ी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप तलाश भी सकते हैं। Screener.in इज़ वन जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, एंड इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट वेबसाइट। It's free. Money Control is another good website which not only gives you a screener but also information on specific stocks for your research purposes. Economic Times is a newspaper full of economic news as well as screener too, and there are many more जिनकी मदद से आप कर सकते हैं। Let's look at screener. दिखता कैसे है? देखिए स्क्रीनर वेबसाइट बड़ा आसान है। Screener.in इनका आप जैसे ही वेब एड्रेस टाइप करेंगे स्क्रीनर खुल जाएगा। ये चूँकि मेरे नाम पर है, मेरा रजिस्टर्ड है, सो दिस इज़ हाउ माय नेम इज़ कमिंग। आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने डिटेल डाल सकते हैं एंड देन यू कैन यूज़ इट। नाउ जैसे ही आप खोलोगे तो उसमें 3 चीज़ें दिखेंगी आपको, फीड, स्क्रीनर एंड टूल्स। और इधर दिखेगा सर्च फॉर अ कंपनी, यहाँ आपका नाम आएगा और यहाँ पर दूसरी तमाम इन्फॉर्मेशन आएंगी जिनके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। ओके, सो अभी हमने फोकस करना है ऑन द स्क्रीन्स, बिकॉज हम क्या सीख रहे हैं? स्क्रीनिंग ऑफ अ स्टॉक। सो फॉर डूइंग द स्क्रीनिंग ऑफ द स्टॉक आप स्क्रीन पे आएंगे, आपको मैं अपना नाम बता चुका हूँ, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा एंड मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस विल बी देयर। सो यू अगेन फोकस ऑन द स्क्रीन्स। यहाँ स्क्रीन को आप प्रेस करोगे तो एक नई स्क्रीन खुलेगी। होल्ड अ सेक। नाउ अब आप जो कंपनी लेना चाहते हो, आपके लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो? नाउ लेट्स कंप्लीट हियर। सो जैसे ही आप स्क्रीन को प्रेस करोगे सो एक स्क्रीन खुलेगी। आई विल शो यू दैट स्क्रीनशॉट ऑल्सो। सो एक स्क्रीन खुल के आएगी और तमाम स्क्रीन्स उसमें बनी होंगी जो पहला से भी दूसरे लोगों की भी होंगी और वो आपको दिखेंगी। उसके अलावा एक न्यू स्क्रीन का भी ऑप्शन होगा जिसको आप क्लिक करके अपनी स्क्रीन खुद की आप बना सकते हैं। ना स्क्रीन में आप बनाओगे क्या क्या? ना किसी भी कंपनी के लिए पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंसिस्टेंटली वो कंपनी ग्रो कर रही हो, उसकी सेल्स बढ़ रही हो, तभी कंपनी ग्रो करेगी। अगर बिजनेस ही नहीं ग्रो कर रहा है तो क्या कर रही है? ना 1 साल का बिजनेस ग्रो करने से तो कुछ नहीं होगा, कम से कम 3 साल का बिजनेस देखना चाहिए, कम से कम। सो फॉर 3 years बिजनेस वी लुक एट कि सेल्स ग्रोथ क्या है कंपनी की। वी ऑल्सो लुक एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कि जी सेल्स तो हो रही है, ग्रोथ भी बड़ी अच्छी हो रही है, मगर
कंपनी का मुनाफा नहीं बढ़ रहा है और हमको काहे से मतलब है, हमको कंपनी के प्रॉफिट से मतलब है। अब प्रॉफिट आएगा कहाँ से? प्रॉफिट आएगा कि अगर उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ठीक हैं तभी पैसे बचेंगे। अगर नहीं ठीक हैं, अगर इतनी ही हो रही हैं जितना से सिर्फ कंपनी चल सके और बचत कुछ नहीं हो, तो इट्स नॉट अ गुड बिजनेस। ओके, तीसरी चीज़ हो गई कि इक्विटी पे रिटर्न क्या हो रहा है। अल्टीमेटली एज अ शेयर होल्डर जिसने भी पैसा लगाया है उस कंपनी में या उस बिजनेस में, उसको अपने पैसे पर रिटर्न्स चाहिए, एंड दैट इज़ नोन एज रिटर्न ऑन द इक्विटी। सो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दो चीज़ें हो गई। एक तो हो गई आपकी इक्विटी और दूसरा हो सकता है आपने कुछ लोन वोन भी लिया हो इधर से उधर से। सो एक तो आपको लोन पे पैसा भी वापस करना है जिसमें ब्याज लगना है, और कुछ पैसा उस पर भी बचना चाहिए बिकॉज अब तो आपकी टोटल जिसमें आपका ब्याज निकल सके। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी से ज़्यादा होगा बिकॉज ब्याज का पोर्शन भी उससे जाएगा जो आपने लोन लिया हुआ है, ब्याज पे पैसा लिया है। सो ये और भी तमाम पैरामीटर्स हैं, बट ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो आपको कभी भी ये बताएंगे कि स्टॉक की हालत ठीक है या नहीं है। अगेन माइंड यू, आपको 3 साल का मिनिमम डेटा देखना चाहिए कम से कम, प्रेफरेबली 5 ईयर्स, बट इफ नॉट देन एटलीस्ट 3 ईयर्स। अगर 3 साल कंसिस्टेंसी है तो ये बिल्कुल ठीक है। यू कैन थिंक एंड यू कैन मूव अहेड। So this is what I was talking to you. Now this is the screener website, और जैसे ही आपने स्क्रीन्स पर क्लिक किया सो जो भी आपने स्क्रीन सेव की हुई हैं वो आ जाएंगी। जैसे मैंने 3-4 स्क्रीन सेव की हुई हैं तो आ जाती हैं। मैंने ये परमानेंट बना के सेव कर दी हैं, विच यू ऑल्सो कैन डू। सो यू विल पुश ऑन क्रिएट न्यू स्क्रीन। दिस इज़ द पोर्शन जहाँ पे आप प्रेस करेंगे और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो स्क्रीन आ जाएगी। एंड इसमें हमने कहा जी सेल्स ग्रोथ मेरे को चाहिए 20 से ज़्यादा की। कितनी? 20% पर एनम से ज़्यादा की, और 3 साल की लगातार चाहिए। सो क्या मतलब हुआ? इस साल की भी और अगले पिछले 3 सालों की भी। सेल्स ग्रोथ विल बी ग्रेटर देन 20%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फॉर 5 ईयर्स शुड बी ग्रेटर देन 30%। एंड एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर 3 ईयर्स शुड बी ग्रेटर देन 20। and average return on capital employed for 3 years should be greater than 25। मैंने सिर्फ ये सिंपल 5 पैरामीटर रखे हैं और ये हमको काफ़ी अच्छी कंपनी निकाल देगा। दूसरी और भी चीज़ें देखनी है, बट फिलहाल हमने अगर ये रखा तो हमको देखिए कितनी कंपनियां मिलती हैं, और ऐसा करके हमने एंटर कर दिया। जैसे ही हमने एंटर किया सिर्फ इस डेटा के संग, सो वी गेट अनदर स्क्रीन एंड वी गेट रिजल्ट। देयर आर जस्ट 4 रिजल्ट्स। सो इतनी मेहनत करने के बाद हमको सिर्फ 4 कंपनियां मिली, एसविन, एग्रीटेक, टायामीन्स एंड केमिकल, कैप्लिन पॉइंट एंड मैजेस्टिक रिसर्च। दैट्स ऑल, सिर्फ 4 कंपनी मिली। सो अब क्या हो गया? अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब हमको इन 4 कंपनीज का स्टडी करना होगा। चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जी इनका करंट मार्केट प्राइस क्या है, इसकी मार्केट कैपिटल क्या है, इसकी सेल्स कितनी है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर होल्डिंग अगर ज़्यादा है सो कंपनी इज़ गुड, बिकॉज प्रमोटर को अपनी कंपनी पर ज़्यादा बेहतर भरोसा है। अगर प्लेज्ड है कोई शेयर सो कंपनी ख़राब है। हम ऐसी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जहाँ शेयर्स प्लेज्ड हो, बिकॉज नॉर्मली देखा गया है प्लेजिंग के बाद शेयर्स डूबते हैं, कंपनी डूबती हैं। P इज़ अनदर पैरामीटर एंड ये हमारे पैरामीटर्स। देन वी लुक एट डेब्ट बाई इक्विटी रेशो, कि हमारी कंपनी ना कर्जे और इक्विटी का रेशो क्या है। अगर ये रेशो 1 से ज़्यादा है, पहले तो हमको अवॉइड करना चाहिए डेट वाली कंपनी। बट अगर फिर भी किसी वजह से लिया है, बिकॉज इन बिजनेस यू नीड टू टेक द डेट, कुछ ना कुछ लोन आपको लेना होगा फॉर मल्टीपल रीजंस। सो उस केस में किसी भी हालत में डेट टू इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 1। सो इतना देखने के बाद हमें लगा हाँ जी इनमें से ये 3 कंपनियां बेहतर मुझे दिख रही हैं। ये कंपनी तो बाहर हो गई, प्लेज्ड है। अब ये 3 कंपनी बची, टॉप 3, राइट। इनमें बाकी चीज़ें हमको ठीक दिख रही हैं। प्लेजिंग भी ठीक है, पी ठीक है, ये भी ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो भी ठीक था, डेट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक था, लेस देन 1, निग्लिजिबल डेट है सब में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है,
डिविडेंड भी दे रही हैं, अभी एक डिविडेंड नहीं दे रही है, तो देयर मस्ट बी सम रीज़न कि अगर इसका प्रॉफिट भी हो रहा है, इतना प्रॉफिट भी कमा रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 47% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 72% है, तो हमको देखना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये क्यों डिविडेंड नहीं दे रही है। कहाँ मिलेगा ये डेटा? एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट कहाँ मिलेगी? इसी को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सेम वेबसाइट में नीचे की तरफ आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाएंगी पिछले कई सालों की। सो यू कैन ओपन द करंट एनुअल रिपोर्ट एंड रीड इट। अगर आपको कन्विंसिंग लगता है तो ठीक है, एल्स एक साल पहले की भी खोलिए और देखिए उस साल जो उन्होंने कहा था क्या वो चीज़ें की हैं। अगर आपकी चीज़ें इस पर फिट बैठती हैं तो आगे बढ़ते हैं, नहीं बैठती हैं तो इसको छोड़ देते हैं। बट अभी स्टडी करने के लिए अब आपके पास आपने ज़ीरो डाउन किया हुआ था सिर्फ ये 3 स्टॉक्स। दीज आर द 3 stocks which you had zero down out of 4 results which you got. Let's move further. The fine list for portfolio. Number 1, never buy with just a screening. You need to do complete analysis. Now for complete analysis आपने और थोड़ी पढ़ाई करनी होगी, थोड़ा उनको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना होगा, थोड़े पैरामीटर और देखने होंगे, रेटिंग्स देखनी होंगी। सेम स्क्रीनर पे आपको नीचे रेटिंग्स मिल जाएंगी। सो रेटिंग वाले पन्ने को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि हाँ जी ये फ़र्क है। डिसाइड अ राइट प्राइस टू परचेज। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट प्राइस पे परचेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट। एक अच्छा स्टॉक है, स्टॉक इज गुड, ग्रोइंग, फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स, ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, but at what price you need to buy is equally important. जब आप राइट प्राइस तय कर लें, पहले आप राइट प्राइस तय करिए, एक रेंज तय करिए। कभी भी आप फिक्स प्राइस मत तय कीजिए कि जी मैंने तो 101 में लेना है। नो, यू फिक्स इट दैट एनीथिंग बिटवीन 90 to 100 यू वांट टू बाय। नाउ 90 to 100 कैसे तय करेंगे, उसका एक साइंटिफिक तरीका है तय करने का, जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसी पे आपने लेना है एंड बी फर्म ऑन दैट प्राइस। कुछ 1-2% ऊपर नीचे होता है, ऐसे 90 और 100 आपकी रेंज है, 90 से 100, और आपने देखा लोवेस्ट उस दिन प्राइस 101 आया, यू कैन गो अहेड बिकॉज यू आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म, यू आर लुकिंग एट 20% रिटर्न मिनिमम, सो नॉट अ प्रॉब्लम। अगर 20 की जगह 19% भी आया तो इट इज़ मच बेटर। एक साल में अगर आपको 20% रिटर्न आता है तो आपकी कैपिटल जोड़ लीजिए कितने साल में डबल हो जाती है। जब ये सारा हो जाए, प्लेस योर ऑर्डर। वंस स्टॉक्स आर परचेज्ड, होल्ड एंड सेट टाइट। बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट व्हाट यू हैव डन इज अ राइट थिंग। कीप मॉनिटरिंग। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हेन टू सेल। नफा तो काट लेंगे, बट कब? बिकॉज कई बार आपने देखा होगा कि स्टॉक आपने खरीदा, ग्रो भी कर गया, बहुत आगे बढ़ गया, ऊपर भी चला गया और उसके बाद नीचे आ गया, और फिर आप इंतज़ार करते रहते हैं उसी प्राइस का, वो कब आएगा वो कब आएगा, और वो आता ही नहीं है। तो आप दुखी होते हो कि यार मैं तो फंस गया, बेचा भी नहीं। सो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट व्हेन टू सेल। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। पहली चीज़ है, जब आपने स्टॉक खरीदा था तो उस टाइम पे आप तय कर लीजिए कि ओके, इस स्टॉक से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, इससे मेरी एक्सपेक्टेशन 20% है, इससे मेरी एक्सपेक्टेशन 30% है, इससे मेरी एक्सपेक्टेशन 50% है। बेसिस रीजंस, लॉजिक्स। ऐसा नहीं कि हवा में आपने कुछ खरीदा और आपने कहा साहब ये तो दुगना हो जाए 1 साल में। ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत जगह आए हैं। वेल्थ क्रिएट करने में भी एक समय देना पड़ेगा आपको, बिना वक्त के वो भी नहीं हो सकता कि आज आपने 100 रुपये खरीदा और 1 महीने में 200 रुपये का हो गया। ऐसा नहीं होता है। सो पहली चीज़, अगर आपने जो भी टारगेट तय किया था विच इज़ रीजनेबल, लॉजिकल, बैक्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स, आपका टारगेट हो गया, आप सेल कर सकते हैं। दूसरा, आपने ख़रीदा था ग्रोथ के लिए और आपने देखा कि 3 क्वार्टर तक तो ग्रोथ बड़ी अच्छी आई और चौथे क्वार्टर में वो ग्रोथ घट के 50% हो गई और आपको उस 50% का कोई रीज़न भी समझ में नहीं आ रहा है। सो आपको उस स्टॉक को बेचना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो नीचे आया है एंड देयर इज़ अ रीज़न टू इट। से कोरोना क्राइसिस आई थी, सारी चीज़ें बंद हो गई थी,
कंपनी की प्रोडक्शन भी बंद हो गई थी, तो कंपनी का सेल्स भी गिरा था और प्रॉफिट भी गिरा था। रीज़न समझ में आया। बट उसके बाद अगर अच्छी कंपनी थी तो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर उसने इम्प्रूव किया, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा, उसकी सेल्स भी बढ़ी, उसके प्रॉफिट्स भी बढ़े। सो अगर ये चीज़ें चल रही हैं और बीच में एक्सेप्शन है, यू कैन होल्ड, एल्स इमीडिएटली यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट स्टॉक टू सेव योर मनी। याद रखिए, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शोर बहुत होता है, देयर इज टू मच ऑफ नॉइस फॉर द पीपल हु आर इन द इन्वेस्टमेंट बिजनेस। दिस इज अ बिजनेस, आई कॉल इट अ बिजनेस। सो जो भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको शोर से बचना है। आपको टीवी के शोर से बचना है, बिजनेस चैनल के शोर से बचना है, फ्री टिप से बचना है, दूसरे लोगों से आपको इन्फ्लुएंस या मोटिवेट नहीं होना है कि उन्होंने कहा साहब मैंने तो एक्स शेयर खरीद लिया और वो तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और आप घर आए और आपने पहला काम किया वो ही खरीद डाला। नो, प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। आपने जैसे ही ऐसा किया आप लूज़ करेंगे। कभी भी फ्री टिप के बारे में मत पूछिए। ये फ्री कुछ होता नहीं है दुनिया में, एंड इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, यू लूज़। बिकॉज वो आपको कुछ बता भी देंगे तो ये नहीं बताएंगे कि कब बेचता है। सो नेवर गो फॉर इट, नेवर एवर। रादर मेरी सलाह तो ये है कि आप खुद सीखिए और अपने दम पर करिए। मैं आपका हैंड होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, आई विल हैंड होल्ड यू। अपना पोर्टफोलियो रेगुलर मॉनिटर करें। अच्छे स्टॉक खरीदिए, आपको रोज़ मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट रेगुलर करें, कम से कम क्वार्टर में एक बार करें, इफ़ पॉसिबल हफ्ते 10 दिन में एक बार देख लें क्या स्टेटस है, कौन कहाँ जा रहा है। ट्रैक रखें, उतने ही रखें जितना, उतने ही स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखें जितने आप मॉनिटर कर सकते हो। डोंट कीप 50 स्टॉक्स, 10, 12, 15, दैट्स ऑल। डोंट गो ऑन अ बिग नंबर। नॉर्मली लोग 20, 21 तक भी जाते हैं, बट इनिशियली आई विल सजेस्ट आप 10, 12, 15 स्टॉक पे रहें और स्टिक करके रहें। स्टॉक्स के संग इमोशनल मत होइए। जैसा मैंने पीछे भी कहा था आपसे कि अगर आपने देखा कोई स्टॉक है और ऑल ऑफ अ सडन फॉर नो रीज़न वो 50% गिर गया है, 3 दिन लगातार नेगेटिव सर्किट आ रहा है, तो आप पहले दिन से अलर्ट होइए और पता कीजिए सर्किट क्यों आ रहा है, क्या हो गया। मैं एग्जांपल देता हूं आपको DHFL का, दीवार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। क्या स्टॉक था, अगर आपको याद हो, क्या शानदार स्टॉक। इट वॉज डूइंग एनीथिंग वंडरफुली, गोइंग वेल, एंड ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड कमिंग डाउन। देयर वॉज नो रीज़न, कोई इनका डिफॉल्ट का बाजार में कोई खबर नहीं था, और लोग एवरेज कर रहे थे जबकि वॉल्यूम इंडिकेटर कुछ और कह रहा था, और लोग खरीद भी रहे थे कि अब इसको एवरेज कर लें, अब इसको एवरेज कर लें, अब इसको एवरेज कर लें। और अल्टीमेटली क्या हुआ, व्हाट इज द टुडे फेथ, यू ऑल नो। सिंटेक्स इज अनदर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच क्लास। सो इमोशनल मत होइए। अगर आपका स्टॉक बिना किसी कारण के 50% गिर गया है, इमीडिएटली विदाउट एनी रीजन सेल इट ऑफ। इफ यू नो द रीजन, इफ यू फाइंड अ रीजन विच इज जस्टिफाइबल, फाइन। इफ फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, बेसिक्स नहीं बदले हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर फंडामेंटल बदल गए, बेसिक्स बदल गए, स्टॉक से निकल जाइए, कोई इमोशन मत रखिए उसके संग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिटेल डिस्कस करेंगे कि बाई रेंज ऑफ अ स्टॉक कैसे तय करें, कि किस रेंज में स्टॉक खरीदें और कब खरीदें। आपने चुन लिया, यू हैव फाउंड आउट द स्टॉक, लेकिन आपको रेंज नहीं पता है कि किस रेंज में खरीदना है। वो इंपॉर्टेंट है और इक्वली इंपॉर्टेंट है, रादर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक भाव पे कोई सामान खरीदा है तभी आपका प्रॉफिट बेहतर होगा। सेल रेंज कैसे तय करें, दो तरीके मैंने आपसे शेयर किए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ साइंटिफिक तरीके हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा अगली वीडियो में कि सेल रेंज आप कैसे तय करें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आपने सुना, आपने ध्यान से वीडियो देखी, बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट नई वीडियो जब भी आए तो आपको पता चले। अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल्स में लोगों से आप शेयर करें सो दैट उनकी भी नॉलेज बढ़े। मेरे को आप फीडबैक दीजिए कमेंट्स में दैट कौन से टॉपिक्स पे आप पसंद करेंगे ज़्यादा सुनना, ज़्यादा देखना, क्या टॉपिक्स आपके लिए बेहतर होंगे, कहाँ कहाँ आपका इंटरेस्ट है, आप मुझे कमेंट्स दीजिए। एंड रेस्ट अश्योर्ड आई विल रिस्पॉन्ड टू एवरी कमेंट। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।